Hello children, how are you? I hope you are fit and fine at your home. Today we are going to start another new chapter of history, that is the Mughal Empire, chapter 5. As we know that in the last chapter of history, we already understand and we already learned about the Delhi Sultanate, and the last dynasty was the Lodi dynasty. After the Ibrahim Lodi defeated in the Battle of Panipat by the Babur, so Mughal Empire was started. So without wasting our time, just go through the history's pages. Let's start. Very warm welcome children. Today we are going to start chapter 5 of history, creation of an empire, the Mughal Empire. We will start the Mughal time, which was between 15 to 26 to 1707. 1707, that is the death of Aurangzeb. So after Aurangzeb, there is a minor, very less important Mughal empires. So they are not creating such much history. So the decay is Mughal Empire from 1707, because after the 1707, the Britishers entered in our territory and they started ruling. So 1707 is the decay time of Mughal Empire, and it started from the first battle of Panipat that was held in 1526 between Babur and Ibrahim Lodi. Who is Ibrahim Lodi? As we read in chapter 4 in the previous, that Delhi Sultanate was there, and in the Lodi dynasty. The Lodi dynasty was the last Muslim empire, and Ibrahim Lodi was the last ruler. After the decay of Delhi Sultanate, Mughal emperors begin their reign in our country. So let's start. It is a very interesting topic. So children, pay attention to the flow chart and picture so that you can easily learn. That is a Mughal dynasty. First, we have, these are the strong ruler of that dynasty. First, the founder of the Mughal dynasty was a Babur. Okay, the first picture is the Babur, and second we have the Babur's son, who was the son Humayun. That is the Humayun. Third is the great Akbar. It is a very famous picture, and you know very well about Akbar. No, it is then after the Akbar, his son was Jahangir. He was a good painter as well and good emperor. And after the Jahangir, there is a Shahjahan. Shahjahan's reign is known as the golden period of architecture, because at that time the Taj Mahal was built, Red Fort was built, so many castles, fort and monuments built by the Shahjahan. After the Shahjahan, his strict son Aurangzeb was the next ruler, and it till the death of Aurangzeb, he was died in the age of 89. So in the 1707, if the question is there कि who is the last strong ruler of Mughal Empire, the answer is Aurangzeb. And if the question is there, who was the last ruler of Mughal Empire, so that is that answer is different. Because in 1857 revolt, the Bahadur Shah Jafar was the last ruler of Mughal Empire. सो मुगल एम्पायर टोटली लास्ट कब हुआ? जब ब्रिटिशर्स की 1857 की क्रांति हुई, तो बहादुर शाह जफर थे लास्ट रूलर. लेकिन लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर की बात करें तो औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 के बाद कोई ऐसा रूलर नहीं आया जो पूरे एम्पायर को कंट्रोल कर सके. और ब्रिटिशर्स की एंट्री हो गई थी इस टाइम. ये फ्लो चार्ट है, आपको फ्लो चार्ट बनाना है बेटा, ताकि आपको याद रहे कि कौन सा रूलर कब था. ओके, तो इब्राहिम लोदी की बात करते हैं हम. इब्राहिम लोदी जो थे, लोदी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे. बैटल ऑफ पानीपत जो कब हुआ था? 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें कि बाबर के पास अच्छे हाथी थे, अच्छे तोप थे, अच्छी सेना थी, तो इसलिए बाबर उसमें जीत गए थे और इब्राहिम लोदी हार गए थे, क्योंकि इब्राहिम लोदी ऑलरेडी स्ट्रगल पीरियड में लड़ रहे थे और लोदी डायनेस्टी बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे था. तो इसलिए 1527 में जो युद्ध हुआ, बैटल ऑफ पानीपत, उसमें बाबर जीते और अल्टीमेटली बाबर ने हमारे इसमें कंट्री में
रूल करना स्टार्ट। हम ये भी कह सकते हैं कि मुग़ल डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? बाबर थे। और 1526 में बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को डिफीट करके उन्होंने भारत की सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया था, क्योंकि उसकी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी और हाथी और तोप लेके आए थे बाबर। ओके, उन्होंने कब तक रूल किया? 1530 तक। स्मॉल पीरियड था, बस इम्पॉर्टेंट ये है कि वो फाउंडर अपनी यहाँ बाबर मुगलों की फाउंडेशन स्टार्ट कर दी थी। नेक्स्ट वी हैव हुमायूं, बाबर के सन ऑब्वियसली। उन्होंने 1530 टू 1540 तक रूल किया, लेकिन शेरशाह सूरी बीच में अफगान रूलर्स थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था और शेरशाह सूरी उसमें स्ट्रॉन्ग रूलर था, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था, जो कि उसको हुमायूं को हराकर वापस अपने उनके काबुल भेज दिया था। तो बीच में 1540 के बाद 1545 तक शेरशाह सूरी ने दिल्ली की गद्दी ले ली थी, इसलिए वो बीच में ये पीरियड हुमायूं का नहीं रहता। उसके बाद 1545 में शेरशाह सूरी की डेथ के बाद हुमायूं ने अब थ्रोन वापस से एक्वायर कर लिया था। हुमायूं की डेथ के बाद दैट वाज द 1556 अकबर राजा बने, जो उस टाइम उनकी एज कितनी थी? बिल्कुल 13 ईयर्स ओल्ड थी उनकी एज। और कब तक उन्होंने किया? 1605 तक। और अकबर को हिस्ट्री में द ग्रेट रूलर कहा जाता है, द ग्रेट अकबर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जो कि कोई नॉर्मल रूलर नहीं करता। उन्होंने रिलीजियस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया, सेक्युलरिज्म स्टार्ट किया, उन्होंने फ्रेंडली कोलैबोरेशन स्टार्ट करके अपने राज्यों को फैलाना शुरू किया। दैट्स इट। और अकबर के बाद उनके सन जहांगीर गद्दी पे बैठे, जो कि 1605 से लेके 1627 तक उन्होंने रूल किया। नेक्स्ट फिर आता है शाहजहाँ। शाहजहाँ ने कब तक किया? 1627 से लेके 1658 तक शाहजहाँ ने रूल किया। शाहजहाँ का पीरियड जो है आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। क्यों? आपको पता है, अपन चैप्टर 7 ओरल में कर चुके हैं, जिसमें कि वॉरियस कश्मीर बाग हो गया, शाहजहाँ का ताजमहल तो 7 वंडर में आता है, ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, आगरा फोर्ट हो गया, ये सारे किसने बिल्ट किए थे? शाहजहाँ के टाइम बिल्ट हुए थे, इसलिए शाहजहाँ का टाइम आर्किटेक्चर के लिए बेस्ट टाइम कहलाता है। और शाहजहाँ के बाद नेक्स्ट रूलर जो बने वो औरंगजेब थे। वो 1658 से लेके 1707 तक गद्दी पे रहे। 1707 में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उनके फैमिली के मेंबर्स आए थे, जो कि स्ट्रॉन्ग इतने नहीं थे, और मुगलों का पतन स्टार्ट हो गया था और ब्रिटिशर्स हावी हो गए थे। तो 1707 के बाद ब्रिटिशर्स का हम दौर स्टार्ट हो जाता है, और जो मुगल एम्पायर थे वो सिर्फ नाम के राजा रह जाते हैं। सारी टेरिटरी किसके अधीन हो जाती है? ब्रिटिशर्स के अधीन हो जाती है, इसलिए 1707 पतन का पीरियड मानते हैं। अदरवाइज 1557 तक मुगलों का चला था। बहादुर शाह जफर लास्ट रूलर थे मुगल के, और स्ट्रॉन्ग रूलर जो थे वो औरंगजेब तक रहा। उसके बाद वो डीके की तरफ स्टार्ट हो गए। ये है मैप में, यू आर क्लियरली सीन मुगल एम्पायर 1530 में। ऑरेंज जो पार्ट है दिख रहे हो मैप में, जो दिख रहे हैं वो 1530 में इंडिया का एक्वायर किया था। उसके बाद 1605 तक ग्रीन वाला एरिया, जो ग्रीन कलर किया हुआ है, वो मुगलों ने एक्वायर कर लिया था। और उसके बाद 1707 में और एक्सटेंड किया, और येलो पार्ट जो है वो शेरशाह सूरी के टाइम वाला टाइम पीरियड है। तो आप देख सकते हैं कि काबुल से स्टार्ट हुए ये, काबुल और अफ़गानिस्तान से ये स्टार्ट हुए आना मुगल्स, और कैसे उन्होंने हमारी इंडिया पे राज किया, और ग्रेजुअली उन्होंने होल एम्पायर को अपने उसमें शामिल कर लिया था। ओके, आपकी बुक में भी दिया हुआ है ये मैप, ध्यान से देखिएगा। अब मुगल्स कौन थे? जैसे मुस्लिम रूलर्स आए थे हमारी वीक पॉलिटिकल कंडीशन को देख के, वैसे ही हु वर द मुगल्स? ओके, ओरिजिनली बिलोंग टू द सेंट्रल एशिया, लेटर ऑन माइग्रेटेड टू इंडिया। ओरिजिनली वो सेंट्रल एशिया से बिलोंग कर रहे थे, ओके है ना, अफगानिस्तान और ये वाला एरिया। और बाद में लेटर ऑन वो एशिया में माइग्रेट हो गए थे अपने टेरिटरी को एक्सटेंड करने के लिए। राजा वॉर करता है अपने पड़ोसी राज्य से, और जीतने पे वो जो ज़मीन है या वो रेन है या एम्पायर है उसको एक्वायर करता चला जाता है। तो यही सब हैपन इसमें इनके साथ भी हुआ। उसके बाद
अब मुगलों के बारे में कहा जाता है कि फ्रॉम मदर साइड दे बिलोंग टू द चंगेज़ खान। मदर की साइड से तो वो किस साइड किसके थे, चंगेज़ खान, जो स्ट्रॉन्ग ब्रेव रूलर उस टाइम था और बहुत स्ट्रिक्ट और क्या क्या कहते हैं, नरसंहार फैलाने वाला था चंगेज़ खान। हिस्ट्री में उनका नाम थोड़े बैड रूलर्स में लिया जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को मार के, बहुत सारी बैटल्स जीत के और गद्दी पे बैठे थे चंगेज़ खान। और उसके बाद आता है when Delhi and from father side they belong to the तैमूर, और फादर साइड की तरफ से वो तैमूर की साइड से थे। तैमूर लंग जो था वो भी, तैमूर लंग भी शासक जो था वो क्रूर शासक था। उसने भी बहुत नरसंहार करके थ्रोन पे और अपनी एम्बिशंस को कंप्लीट किया था। सो दोनों तैमूर और चंगेज़ खान का ब्लड उनमें मुगलों में था। तो बाय नेचर दे आर वेरी एम्बिशियस एंड रेडी टू फाइट एंड टू गेन द रेन ऑफ अनदर रूलर्स। ये उनकी बेसिक उनके उसमें था नेचर में। इसीलिए तो सेंट्रल एशिया से आगे बढ़ के वो इंडिया तक आए और उन्होंने हमारे इंडिया पे रूल किया। व्हेन दिल्ली सल्तनत हैड बिकम ए वीक एंड इनइफेक्टिव, जब दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी के टाइम जब वीक और इनइफेक्टिव हुई, तो इब्राहिम लोदी के कोर्टियर ने ही उनको वीक कंडीशन के बारे में बाबर को बोल दिया कि भाई अब हमारे यहाँ पे आओ। होता है ना, हमेशा ऐसा होता है, घर में ही हमारा कोई वीक, हमारी हिस्ट्री रही है कि घर में ही कोई वीक पर्सन रहता है, वो दूसरों को इन्फ्लुएंस में लेने के लिए या किसी लालच की वजह से दूसरों को बता देता है। तो यही चैप्टर 4 में भी अपन लास्ट में अपन पढ़ते हैं कि इब्राहिम लोदी के जो कॉर्टियर थे वो ही जाके कहाँ बता देते हैं, वो उनको बाबर को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप अटैक करिए इस पे, इंडिया में आइए, एक बार अटैक करिए, आपको गद्दी मिल जाएगी। तो इंडिया में बाबर ये सुनकर, Ibrahim Lodi was the last king of Delhi Sultanate. He was the son of Sikandar Lodi and he set up throne of Delhi in 1517. He was a peevish, ill-tempered, so lost sympathy of relative and nobles. रिवोल्ट ब्रेकआउट हुआ। चैप्टर 4 में आपके हैं आलम शाह जो अंकल थे, दे वेंट टू द बाबर इन अफगानिस्तान एंड इन्वाइटेड हिम टू इन्वेड दिल्ली। तो बाबर ने उस टाइम जब उसकी बात मान ली और 5 टाइम अटैक किया, 5 टाइम अटैक किया था। 5th टाइम जब अटैक किया बाबर ने, प्रॉम्प्टली मार्च टू दिल्ली इन 1526 एंड डिफीटेड इब्राहिम लोदी फर्स्ट पानीपत बैटल। 5th जो बैटल थी उसमें वो जीत गया, बाबर जीत गया, क्योंकि उसकी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बड़ी थी और हाथी और तोप वो लेके आए थे। तोप अगर हिस्ट्री में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो बाबर का नाम आता है कि वो तोप को लेके आए थे हिस्ट्री में, क्योंकि पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, है ना। तो भालों तलवारों से लड़ते थे लोग बाग। तो तोप जो लाने का श्रेय है इंडिया में, एशिया में, वो किसको जाता है? बाबर को जाता है। तो फर्स्ट पानी और जो बैटल जो थी वो 1526 को हुई थी। वैसे तो बाबर की 5th बैटल थी, लेकिन पानीपत मैदान में हुई थी, इसलिए वो पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत कहलाई, है ना। हरियाणा के पास है हमारे पानीपत, अभी भी जगह है, और वो जगह उसमें, और वो फर्स्ट बैटल कहलाई, पानीपत की फर्स्ट बैटल, जो 1526 में वॉर इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1526 में हुई किस किस के बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। और इसमें कौन जीता बैटल में? ऑब्वियसली बाबर। Okay. Next we have, that is the one picture of Mughals time, the society of our Indian. Now अब बाबर ने क्या क्या किया ना, बाबर कौन, कब तक रहा? बाबर्स रियल नेम वॉज जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर का जो रियल नेम था वो क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद था। ओके। मिर्जा उमर शेख हिज फादर वॉज द चीफ ऑफ फरगना। फरगना एक जगह है, फरगना एक वैली है बेटा अफगानिस्तान के पास, वो उनके चीफ थे, बाबर के पिता। ही डाइड व्हेन बाबर वॉज ओनली 11 ईयर ओल्ड। उनकी डेथ हो गई एक बैटल में जब वो ओनली 11 ईयर्स ओल्ड थे। बाबर कितने साल के थे? सिर्फ 11 ईयर्स ओल्ड, तुम्हारी एज से भी छोटे। बाबर्स एनिमी डिप्राइव्ड हिम एंड जागीर एंड ही हैड टू लीव नेटिव प्लेस इन डिसअपेयर। तो बाबर के जो ऑब्वियसली जो कोर्टियर और रिलेटिव होते हैं, उन्होंने अपनी उसके लिए, प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने रिवॉल्ट छेड़ दिया। और बाबर, क्योंकि 11 साल का बच्चा इमेच्योर होता है, उन्हें पता नहीं होता क्या सही है क्या गलत है, और वो वहाँ से
उनको भगा दिया। अब वो कहाँ गए, वो काबुल आ गए। देन ही केम डाउन टू काबुल, कॉन्कर्ड एंड इट्स रूल 1504। वहाँ पे काबुल में उन्होंने काबुल की जो थ्रोन था वो एक्वायर कर लिया और वहाँ पे अपना रेन स्टैब्लिश किया। In order to expand his empire and strengthen his position in Central Asia, invaded India 5 times। और उसने क्योंकि राजा हमेशा एम्बिशियस होते थे, अपनी एम्बिशन को पूरा करने के लिए वो टेरिटरी को बढ़ाते रहते थे। तो सेंट्रल एशिया में काबुल में तो थे, सेंट्रल एशिया को इन्वेड किया। कितने टाइम? 5 टाइम। जो 5th बैटल थी वो पानीपत बैटल कहलाई उनकी, और पानीपत की वो फर्स्ट बैटल होगी और बाबर की वो 5th बैटल ही। डोंट कंफ्यूज बिटवीन बोथ ऑफ दैम, ठीक है। The 5th battle known as Battle of Panipat. He defeated Ibrahim Lodi in date of 1526. In the Battle of Kahana 1527, Rana Sanga, ruler of Chittor, was also defeated। और उसके बाद 1527 में उन्होंने एक और बैटल लड़ी जिसमें कि राणा सांगा, चित्तौड़ के, हमारे राजस्थान के चित्तौड़ के राजा थे राणा सांगा, वेरी ब्रेव राजपूत किंग, was also defeated in the बैटल ऑफ कहाना। 1527 में वो बैटल हुई थी। हम राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे तब भी इसका जिक्र आता है 1527 में। उसके बाद आफ्टर खानवा, बाबर हैड फाइट टू घाघरा अगेंस्ट द अफगान 1528। और उसके बाद अफगान के साथ एक और बैटल हुई 1528 में, और एक चंदेरी की बैटल हुई जिसमें राजा चंदेरी के राजा राजपूत रूलर्स थे, उन्होंने उसके अगेंस्ट बाबर के खिलाफ लड़ा, जो कि 1529 में हुई थी। ओके, एंड आफ्टर चंदेरी की बैटल के बाद एक उनकी डिजीज़ की वजह से डेथ हो गई। 1530 में उनकी डेथ हो गई बाबर की। उसके बाद कौन बैठेगा? ऑब्वियसली उनका सन ही बैठेगा हमेशा, जो क्योंकि मोनार्क हेरिडिटरी सिस्टम था, तो बाबर के बाद अगर कोई रिवोल्टियर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो 1530 के बाद उनका सन ही गद्दी पे नेक्स्ट बैठा। तो नेक्स्ट रूलर वॉज द हुमायूं। Okay, we will discuss this Humayun's topic on the next module. So come to the now in the homework section. You have to do key terms, beta. All the key terms are in a book, so you have to do all these key terms. इस slide में जरा से फोटो जरा से दिख रही है, आप बुक में देख लेना। Then now come to the MCQ. Shahjahan has troubled with the Portuguese. Portuguese is the answer. राणा सांगा वॉज द रूलर ऑफ, अभी अभी अपन ने पढ़ा, कहाँ के थे? राजस्थान के थे। राजस्थान में कहाँ के? चित्तौड़ के। मोहम्मद जलालुद्दीन वॉज द लेटर नोन एज, मोहम्मद जलालुद्दीन किसका नाम था? अकबर का नाम था। ओके, सो सी इज द राइट आंसर। एंड द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फोर्ट बिटवीन हेमू और बैराम खां के बीच हुई, और या फिर राणा सांगा और अकबर के बीच हुई, या हेमू और हुमायूं के बीच हुई। द सेकेंड बैटल। फर्स्ट बैटल किसके बीच हुई थी? आपको ये बैटल्स याद रखनी है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री में और जीके में मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछा जाता है। और मुगल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत तो कंपटीशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। RS IS का हम फाइट करते हैं, जीके का कोई भी क्वेश्चन हम फाइट करते हैं, कोई भी फाइट करते हैं तो हमेशा ये पूछा जाता है कि कौन सी बैटल किसके बीच हुई और कौन हारा। तो फर्स्ट बैटल पानीपत के किसके बीच हुई? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें कि बाबर की जीत हुई थी। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फोर्ट बिटवीन हेमू एंड बैराम खां। बैराम खां अकबर का संरक्षक था, हेमू और बैराम खां के बीच हुई थी। ओके, अकबर और हेमू के बीच भी कह सकते हैं हम। एंड आईने अकबर कंसिस्ट ऑफ वॉल्यूम। आईने अकबरी की कितनी वॉल्यूम है? आईने अकबरी के टोटल 3 वॉल्यूम है। 3 वॉल्यूम लिखी गई थी। आईने अकबरी लिखी किसने थी? अबुल फजल ने लिखी थी। और कितनी वॉल्यूम है उसकी? 3। MCQ करना है, नेक्स्ट फिलअप्स हैं आपके, वो भी करने हैं आपको। द बैटल ऑफ खानवा वॉज फोर्ट बिटवीन द बाबर एंड राणा सांगा। खानवा की बैटल है वो किस किस के बीच में लड़ी गई थी? राणा सांगा जो राजपूत ब्रेव रूलर थे, और खानवा एक जगह है, अब राजस्थान में जगह है, और बाबर के बीच लड़ी गई थी। राणा सांगा और खानवा के बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच। डैश वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर हु वॉज अ वेरी एफिशिएंट रेवेन्यू मैनेज ऑफ ड्यूरिंग अकबर टाइम। अकबर के 9 जेम्स थे, उसमें से एक जेम था टोडरमल, और वो क्या थे? रेवेन्यू सिस्टम के मंत्री थे। ओके, टोडरमल। तो टोडरमल इज द राइट आंसर। टोडरमल इज द रेवेन्यू मिनिस्टर, वॉज वेरी एफिशिएंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्टर।
उसके बाद है डैश वॉज एन एमिस्ट्री ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। कौन थे? विलियम हॉकिंग्स आता है। विलियम हॉकिंग्स और विलियम थॉमस आए थे जहांगीर के टाइम। ब्रिटिशर्स आए थे किस लिए? उसकी बिजनेस की परमिशन लेने लिए। तो उसमें से विलियम हॉकिंग्स और विलियम थॉमस दो नाम आते हैं। विलियम हॉकिंग्स वॉज एन एमिस्ट्री ऑफ किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड। एम्बेसडरी के मेंबर थे उस टाइम जब जेम्स फर्स्ट थे। अकबर इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड। अकबर के टाइम उन्होंने एक मैनेजमेंट का एक सिस्टम स्टार्ट किया था जिसको कि एक पोस्ट दी जाती थी, गवर्नमेंट पोस्ट। उसका नाम क्या कहलाता था? मनसबदारी सिस्टम। तो यहाँ पे आएगा मनसबदारी सिस्टम। फिलअप में आपके लिखा हुआ है पेंसिल से बेटा, इसमें दिख नहीं रहा है। मनसबदारी सिस्टम फोटो में आपको पूरा दिखेगा। मनसबदारी सिस्टम था। बाबर ने खुद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, तो बाबर के आगे नामा लगा देना है, बाबर नामा। ओके, बाबर ने खुद ने एक बुक लिखी थी जिसका बायोग्राफी जो कहते हैं बाबर नामा उसका नाम था। नाउ हु कंप्लीट दिस सेंटेंस। हु वाज टोडरमल? टोडरमल अभी फिलअप में आंसर है रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। टोडरमल कौन थे? रेवेन्यू मिनिस्टर थे किसके? अकबर के। हु रोट आईने अकबरी एट अकबरनामा? आईने अकबरी किसने लिखी थी? आईने अकबरी बताइए मेरे को, आंसर बताइएगा। अकबर ने लिखी या अबुल फजल ने लिखी? ठीक है, ये आंसर मेरे को देना सेकंड का आप मैसेज से। थर्ड वाज हु वाज द सिक्स गुरु? पंजाबियों के जो सिक्स गुरु थे वो कौन से थे? गुरु हर गोबिंद सिंह। ये कन्फ्यूजन है थोड़ा सा आंसर। सिक्स गुरु कौन से थे? गुरु हर गोबिंद सिंह। एंड फोर्थ वन वाज द ऑथर ऑफ तुजू के जहांगीर। तुजू के जहांगीर के कौन ऑथर था? जहांगीर खुद थे। बायोग्राफी लिखी थी जहांगीर ने जिसका नाम था तुजू के जहांगीरी। सो जहांगीर खुद उनके आंसर आएगा जहांगीर। एंड फिफ्थ इज गॉट द परमिशन टू सेटअप द फैक्ट्री एट सूरत। सूरत में जहांगीर के टाइम सूरत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन दो ब्रिटिशर्स ने ली थी। उनका क्या नाम है? सर थॉमस एंड विलियम हॉकिंग्स। अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये दोनों थे, सर थॉमस रॉय और विलियम हॉकिंग्स। ये दोनों पर्सन थे जिन्होंने सूरत में सबसे पहले बिजनेस के लिए फैक्ट्री डाली थी और ग्रेजुअली फिर हमारे थ्रोन पे ही बैठ गए। ओके, so you have to do all these questions beta in your notebook, neat and clean, in history notebook. Okay, and I hope you are doing very well, and I'm asking for the work maximum. All the students, you have to submit your work within a time and within day. Okay, thank you so much.